लेकिन इधर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस मुख्यालय में, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए कि घर की भई काका लिखनिया, मैंने किसी और संदर्भ में भी कहा था संसद में, ये अंधा बाटे सीरनी मुड़ मुड़ अपने को दे, वो हिंदी की कहावत है। चित भी उनकी पट भी उनकी एक और कहावत है। ये तीन कहावत खेल संघों की के चयन, चुनाव और उसकी राजनीति को दर्शाती। यस मैम, यस मैम, यू। Hello sir, Brenda Tilsan from Hindustan Times. So sir, my question is that of course the display that Sakshi Malik has now shown that she has cried, she has also given up the position. Is this the time when international media will also start pressurizing the BJP government, and BJP government will now be forced to come ahead and answer for the things that they have done? Sorry, say again please. The question was too long, I missed it. Sir, so of course, now that she has given up the position and also cried in front of the media and everyone has covered it, is this the time where international media will also be covering it and the BJP government will finally be pressurized into making a statement and removing the minister? Yes. First of all, my friend, I am at least one person who still has hope that more than the international media, my friends in the media will pick it up. For it is our duty, mine, his, hers, and all of us, to ensure that the sports federation are rid of the control of politicians who have nothing to do with sports. I'm also raising a larger issue with you. That's the first thing that any sports women or men want in India. I ask that Prime Minister must come before the nation, and I request him with folded hands that he must answer to the travesty of justice, subjugation of talent, and bulldozing of quality of sports that's happening in this country, the symbol of which is BJP MP Brij Bhushan. I also ask the Honorable President of India, whom we respect immensely, to shed all inhibitions and speak up for the daughters of India. I also appeal to the Speaker of Lok Sabha and Chairperson of the Rajya Sabha to speak for daughters of farmers and the way they have been insulted. Forget about your leanings or your preferences, and please, with folded hands, I say, speak up. And I ask every sportsmen and women in this country to rise up and to speak up. For if we don't speak up now, then this is perhaps the beginning of end of sports in this country, along with many other institutions that are falling by wayside. आपने तो जो कुछ कहा, विजेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। आपने अभी कहा कि देश के जितने खिलाड़ी हैं हर स्पोर्ट्स पर्सन को आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि कई बार दुखते दिल से ये बात कह चुके हैं कि क्रिकेटर जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने कहा कितने क्रिकेटरों ने साक्षी मलिक के लिए या रेसलर्स के लिए आवाज उठाई। क्या क्रिकेटरों को आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, कोई भी हो? जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि दूसरे खिलाड़ी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इसके ऊपर, तो लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि बहुत सारे जो साथी खिलाड़ी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, स्पेशली हरियाणा में है। तो हरियाणा में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। यूपी में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। तो बेचारे खिलाड़ी बोलेंगे तो वो उनको कहते को, बिकॉज इतने मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, बहुत गरीब होते हैं, संघर्ष करके ओलंपिक लेवल तक पहुंचते हैं। फिर उनको कहते कि रिजाइन लेटर हाथ में दे दिया जाता है कि भैया आपने कोड ऑफ कंडक्ट ये तोड़ा है और आपको घर बैठा दिया जाएगा। तो बेचारे दबी आवाज़ में बोल नहीं सकते, डरे हुए हैं, इसलिए नहीं बोलते। अदरवाइज उनका अगर फ़ोन पे बात करेंगे क्रिकेट सर, हाँ सर, स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट को सर वो स्पोर्ट्स नहीं, उसका एक वो स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है, मैं मानता हूँ। और हमारे मुल्क में तो कहते तीन चीज़ें बहुत चलती हैं, एक तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है, एक बॉलीवुड बहुत चलता है, क्रिकेट बहुत चलता है। तो ये तीनों चीज़ों में कहते कि
कभी भी जो असली मसला होता है उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करता। आप कभी भी देख लीजिए, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर स्टार या कोई भी जो काम का ढंका करने वाला इंसान है, जो काम की बात होगी उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। और जो जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी राज्यसभा हैं, सबसे पहले उनके पास जाएंगे। ये सच्चाई है, ये आप सबको मालूम है सर। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। तो अपने जो रोल मॉडल हैं, चूज वाइजली। आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? जो आपको हर मसले पर जवाब दे, जो आपके साथ हमेशा दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आप उसको रोल मॉडल चुनिए। तो आप सुन रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे आप वहाँ रणदीप सुरजेवाला और विजेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलका लांबा भी वहाँ बैठी हुई थी और ये तमाम नेता जो कुछ भी हुआ है कल उसकी चर्चा कर रहे थे। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया और जो बृजभूषण शरण सिंह का करीबी है संजय कुमार सिंह, वो चुना गया है अध्यक्ष और उनकी बात हो रही है। साक्षी मलिक ने कल ट्वीट कर दिया है कि अब आगे वो कुश्ती नहीं लड़ेंगी, देश के लिए अब वो पहलवानी नहीं करेंगी। ये तमाम बातें और इसकी चर्चा अभी बुशरा जी हमारे सहयोगी जो सीधे जुड़ी हुई हैं जंतर मंतर से, वो कर भी रही थी। तो महिलाओं की चर्चा हो या, क्योंकि महिलाओं की चर्चा इसलिए क्योंकि इसी जंतर मंतर पे जहां आज ये धरना प्रदर्शन है, यहीं महिलाएं बैठी हुई थीं अपनी मांगों को लेकर के। और लेकिन क्या कुछ हुआ आपने देखा, यहीं से ये घसीटी गई, यहाँ से निकल कर ये जा रही थी संसद की तरफ, लेकिन उन्हें कैसे दिल्ली पुलिस ने इन्हीं सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर कैसे घसीटा था, कैसे अपने बूट के नीचे लाने की कोशिश की थी। ये तमाम तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं। कुछ भी नया नहीं है या कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे दमन को रोका नहीं जा सकता? क्या ऐसे इस तरह के जो दमन होते हैं उसका विरोध नहीं हो सकता है? अगर विरोध हो सकता है तो फिर आज जो विरोध प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन कहाँ तक आगे बढ़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़रा एक बार दीपक जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखा जाए दीपक जी, विरोध की बात हमेशा कही जाती है और एक स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी में इसकी ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में आप देखिए कि कई बार इसे दबाने की कोशिश होती है और उसकी आंखों देखी हम लोग देख चुके, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और फाइनली क्या होता है, देश एक गोल्ड मेडल लाने वाली पहलवान जो है वो उसको देश खो देता है इस हिसाब से, क्योंकि वो ट्वीट कर जाती हैं कि आगे अब हम नहीं खेलने वाले हैं। छोटी मोटी घटना नहीं है। आज के इस विरोध प्रदर्शन से, जो इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन है, उससे कैसे उसको आंका जाए जो महिलाओं का हुआ, जिस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये जो स्थिति लाई गई है ये बहुत ही सोच समझ कर लाई जाती है राजीव जी। होता यह है कि जब तानाशाह जब पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि किसे किस तरीके से दबाया जा सके। देखिए,